Hey, good morning, friends. It's morning for us in Pune. Yesterday night we reached to Pune, and today uh, we just thought like we'll continue our journey today itself. Uh, we took rest, so the plan is now to start around 11:30 in the morning, of course, uh, to Madhya Pradesh, and we will be going via Samriddhi Expressway via Nagpur. But the thing is, we don't know how far we can reach. So it could be that we might have to take a break in Nagpur or Shivani for an overnight sleep, and then from there on we will continue our journey. Our end destination for now is Katni, which is in Madhya Pradesh, and we have some work there at our house, which has been closed for some time now. So we want to reach Katni at such a time when we can spend some hours cleaning the house and basically maintaining it a little bit, and then from there on we will try to visit our relatives. So that's all the plan we have. Yesterday you might have seen that in our last video we reached to Pune. We faced lot of traffic when entering into Pune, but apparently uh, around 16 hours, 16.5 hours it took from Bangalore to Pune, right, to our destination at Punawale. Now, as I showed you that the Tata Nexon AMT that we have, it was showing a mileage of 20.6 at some point of time before entering Pune. But by the time we reached to Pune at our destination, the mileage dropped to 19.7. But still, I am happy. Anything in the range of 19 to 19 and above basically is very good. And of course, it's not about as an Indian, I am just looking for mileage. But if you are going a long journey, doing a journey for 6,000 trip, even a mileage of 19-20 when compared to 16-17 is very, very critical, right? Because petrol prices are high, of course, and of course nobody wants to lose money. I want to save money as well, and we can use that money for something else. There are toll taxes. We can probably get some hotel if we want to stay, right? So if even if we try to save around 2 to 3,000 rupees, then it's okay. And also what I have noticed that if you ride at 120 kilometer speed pressing the accelerator, right, or you ride at 90 kilometer speed consistent speed, the time taken is still same, right? You might feel a little bit of adrenaline at some point of time, but it's okay. It's effectively okay. And of course when you are traveling with your family with so much luggage, and you have kids, right, you have your wife and your mother, then of course you don't want to drive, I mean, carelessly, right? So that's the reason. And from here now, we will also take our mother with us. So she will accompany me, my wife, my daughter, Tata Nexon, and my mother. 5 people will be traveling now, including our Nexon, to Madhya Pradesh. We'll keep you posted how it goes. Stay tuned. Okay, friends, now we have started from Pune, our journey to Madhya Pradesh. Let's see how far we make it today. We have reset the trip meter, so we will see how much we cover and against how much mileage. Right now we have put for Nagpur, and it's showing 10 hours 15 minutes via Samriddhi Mahamarg. But as I said, our aim is to go beyond Nagpur, but we plan to split the journey in small targets, milestones, so that we keep on positive mood, right? So let's see how it goes. We'll keep you updated. Okay, cheers. So हम लोग अब पुणे से बाहर आ चुके हैं सिटी लिमिट से. ऑन द वे हैं हम खाड़ घाट रोड पे हैं, और वेरी सून एक्चुअली वी शुड बी एबल टू ज्वाइन. हम जुड़ेंगे समृद्धि महामार्ग में. खाड़ नहीं, खेड़ बोलना चाहिए था मुझे, खेड़ घाट, मैंने खाड़ बोल दिया, सॉरी. यस. लेकिन एक चीज़ है महाराष्ट्र में, आप किसी भी रेस्टोरेंट का अगर बोर्ड देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा प्योर वेज. तो आई मीन ठीक है, वो हिंदी ही है, लेकिन प्योर वेज जनरली
और लोग और स्टेट में आप देखेंगे तो इंग्लिश में ही लिख देते हैं लोग, यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ने पे थोड़ा सा वो कॉमिकल लगता है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी आदत इंग्लिश की हो गई है, जहाँ पे हिंदी में हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स घुसा देते हैं और उसको पढ़ते भी उसी तरीके से हैं, लेकिन जब वो एक्चुअली में हिंदी में लिखा होता है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जैसे प्योर वेज, प्योर मतलब वो शब्द ही मतलब फिर हिंदी में जब पढ़ते हैं थोड़ा सा मतलब फंसी सी आ जाती है। हिंदी की आदत छूट गई है। हाँ, आदत नहीं छूटी है, लेकिन हिंदी इंग्लिश बन गया है ऐसा। तो अभी अपन चल रहे हैं, हमारी माता राम भी हमारे साथ हैं आज, तो वो भी चल रही हैं और गाड़ी पूरी फुल्ली पैक्ड है। कल का जो सामान था उसमें एडिशनल 2 से 3 हमारे डफल बैग और आ गए हैं। तो ये है सीन, आगे देखते हैं क्या सीन बनता है, आपको बताते रहेंगे। बगल में देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोक्ष प्योर वेज इंग्लिश में, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके नीचे लिखा है प्योर हिंदी में, प्योर वेज। तो है तो हिंदी है मतलब वही, लेकिन बस सुनने में थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा मतलब लगता है कि अरे थोड़ा सा कॉमिकल सा लगता है, लेकिन इसमें कॉमिक वाली कोई बात नहीं है, बट या आई फाउंड इट लिटिल इंटरेस्टिंग, तो मैंने सोचा कि बताऊं। अब इस रोड पे अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे ढाबे ही ढाबे, हर जगह ढाबे, आकाश वेज, आकाश मिसल हाउस, और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ बना है, बहुत अच्छा। हाँ चलें क्या, मेरी बेटी बोल रही चलें क्या, लेकिन नहीं जा सकते हैं अभी क्योंकि फिर लेट हो जाएगा हम, सोना मेरा बेटा। ठीक है, अब हमारी रोड सीमेंटेड रोड है ये वाली। अच्छा, सीमेंटेड रोड में एक चीज़ है कि टायर घिसते बहुत ज़्यादा है। मैंने नोटिस किया कि मेरे खुद के टायर अभी सिर्फ 36 किलोमीटर गाड़ी चली है, 36,000 किलोमीटर, एंड ऐसा लगता है कि बहुत 2-3 टायर जो मेरे दो आगे टायर हैं उनकी थोड़ा सा साइड में ज़्यादा घिसान हुई है। चलिए आगे बताते हैं आपको और। ओके फ्रेंड्स, वी आर नाउ 59 किलोमीटर फ्रॉम आवर सोर्स लोकेशन पूना वाले से हम 60 किलोमीटर चल चुके हैं। गाड़ी का माइलेज दिखा रहा है 14.7, राइट। अभी भी हम समृद्धि महामार्ग से नहीं जुड़े हैं, बट जो रास्ता है जोड़ने का, बाईपास रोड जो बना हुआ है, शायद मछार कुछ बाईपास रोड है, काफ़ी अच्छा है, ट्रैफिक कम है। आई मीन ट्रैफिक तो है लेकिन मतलब बहुत फास्ट मूविंग ट्रैफिक है। ट्रक्स अपने लेन पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्स तो आप जानते हैं कि उनको अगर खाली जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रोड अच्छी है और माइलेज भी कार हमारी अच्छा दे रही है, एटलीस्ट सेटिस्फैक्ट्री है। मैं इससे कंपेयर नहीं करना चाहता मारुति डिज़ायर से, कि वो तो 25-25 दे देती हैं। नेक्सॉन के हिसाब से आई थिंक जो हमें कि मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ही हम लोग इस पे जुड़ेंगे, क्या कहते हैं, अपना समृद्धि महामार्ग में, उस पर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसा क्या दिखता है, क्योंकि मेन हाईलाइट जो है हमारा पुणे से कटनी या उससे पहले अगर हम रुकते हैं नागपुर, वो है महामार्ग, समृद्धि महामार्ग। एंड हम लोग सब एक्साइटेड हैं। मैं तो 2 बार आ चुका हूँ इसमें, लेकिन मेरी बीवी और मेरी बेटी इस में नहीं आई है, तो हम देखते हैं कैसा रहता है, बताते हैं आपको। One small tea break. We just stopped. We have not yet joined Samriddhi Marg, but we found a good, clean looking with no rush at least. This shopping type of center. Not everything is open, but yes, what we need is here. A very neat and clean washrooms are here. So yes, it's a good one, and you can see the highway. It's beautiful, this one. Just look at the landscape. हाँ। अभी भी हम जुड़े नहीं हैं, पर आप देखिए कैसे पहाड़ को काट के बनाया गया है। मम्मी देखो, It's beautiful. देखो कैसे, कितना मतलब कितना समय लगा होगा इसमें बनाने में, इस पहाड़ को काटने में। बहुत सुंदर। और इस तरफ देखिए कितने ऊंचे में हैं हम, हाइट पे हैं, देखिए बहुत सुंदर। पूरे पहाड़ के साइड यहाँ पे इन्होंने जाली लगा के रखी है कि अगर मान लीजिए कोई पत्थर टूट के नीचे गिरता है, सेफ्टी के लिए अच्छा किया गया है। जाल में अटक जाएगा। हाँ, जाल में अटक जाएगा। वेरी गुड सुना। वाओ सोना, इट्स सो और उससे किसी को ब्यूटीफुल। चोट नहीं लगेगी। लेकिन देखिए बहुत सीनिक है, बहुत ही सुंदर इन्होंने कट किया है। वाह,
देखिए इसी के लिए तो टोल देना पड़ेगा आपको भाई। हाँ, टोल तो आपको देना पड़ेगा और देना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर इतना बना रही है, अच्छे से मेंटेन कर रही है, तो टोल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कोई खुशी खुशी देगा। बस यही है कि जहाँ पे चीज़ें बिगड़ी हुई हैं आप बना देते हैं, अगर कोई चीज़ बिगड़ी हुई है तो उसकी मेंटेनेंस भी प्रॉपर कीजिए। पीपल विल हैप्पीली पे टोल, राइट। सबको सुविधा चाहिए और सबको पता है कि सुविधाएं फ्री में नहीं मिलती हैं, हर चीज़ की एक कीमत होती है ना। तो ये काम तो अच्छा हुआ है, रोड भी ठीक ठाक है। अभी तक हम समृद्धि महामार्ग में वैसे जुड़े नहीं हैं। जो हमको गूगल मैप ने रास्ता दिखाया है वो नासिक के थ्रू बाईपास से लेके जाएगा, तो अभी हम उसी तरफ निकल रहे हैं। बट देखिए कितना सुंदर सीन है, कितना सुंदर अद्भुत। ब्यूटीफुल। अभी दिसंबर का महीना है तो ऐसा है, लेकिन मेरे ख्याल से मॉनसून के समय ये बहुत सुंदर लगता होगा। चारों तरफ हरियाली और कुहासा, मस्त मजा आता होगा, हल्की हल्की बारिश। देखिए बहुत सुंदर पहाड़, देखिए पहाड़, ये पहाड़ यहाँ पे कितने सदियों से है, ठीक है। हम आज इस रास्ते से गुजर रहे हैं, हमसे पहले बहुत लोग यहाँ से गुजरे होंगे, हमारे पूर्वज गुजरे होंगे, कभी जानवर गुजरे होंगे, और ये पहाड़ यही रहा होगा, ये पहाड़ ऐसा ही रहा होगा 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, आज भी है ना। तो हम देख रहे हैं, जीवन है, जीवन का मजा ले रहे हैं। जो चीज़ें हैं जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं वहाँ एंजॉय करिए। चलिए देखिए 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 कितना कितना सुंदर, देखिए सोना सोना देखो बेटा कितना अच्छा लग रहा है। देखिए भाई मूवीज में भी तो हम ऐसे ही देखते हैं कि हाँ आपको दिखाया जाता है स्विट्जरलैंड का सीन दिखाया जाता है। ये देखिए क्या कम है इसमें। हाँ बर्फ नहीं है वो बात अलग है, इसमें कुछ बट कम नहीं है। बर्फ नहीं है क्योंकि इंडिया में यहाँ पे बर्फ नहीं होती है, बट सुंदरता में ये किसी चीज़ से कम नहीं है। और मिसल हाउस, माउली मिसल हाउस, यहाँ पे मिसल बहुत फेमस है, तो बहुत तीखा रहता है। ठीक है, जिनका टेस्ट बर्ड है, जो उसके लिए कस्टम है या जिसको आदत है, उसको तो बहुत मज़ा ही आता है। अभी हम अग्रसर हैं, चलिए और आपको दिखाते हैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो, ठीक है। तो वी हैड आवर लंच एट होटल सत्कार प्योर वेज। इट्स बिफोर जॉइनिंग द समृद्धि महामार्ग, so we thought to take here lunch. Maybe we don't know how many eateries are open. It's already 4:15 now. The food was good. One paneer butter masala and 2 naan with 1 water bottle. It costed us 360 rupees. There is also ample parking available. Washrooms are quite clean. This washroom is from outside people, but there is a washroom also inside the restaurant. Everything else was good. Let's catch up on the highway. Now we are starting after our lunch. Lunch is already late, 4:15. We are going to join Samriddhi Marg now. It's already late, so we cannot make it to Katni for sure. So just now we have called one hotel in Sivani. So we are going to stay overnight there. Around 2 o'clock in the night we will reach to Sivani. So we will have our night nap there. And then tomorrow morning, 9 o'clock or 10 o'clock, we will depart from there. It's only 4 hours from Sivani. So that will give rest to everyone and also time for us to have our work done in Katni. As I told you, we have to do some cleaning and all. But yes, let's catch up on the highway. Food was okay. Pricing was also okay. Service was very late. So if you are in a hurry, you can avoid it. But if you are not in a hurry, then food is okay. Okay? Catch it, guys. Now, so finally, we have reached a point where we need to connect. So this road, as you can see where the truck is going, if you go that side, it's Mumbai. Now, if you see on your screen on the top, the highway, that is the समृद्धि महामार्ग. ये समृद्धि महामार्ग है
और अगर हम सीधे यहाँ से गए लगभग 35 से 40 किलोमीटर तो हम नासिक पहुँच जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर भोलेनाथ जी का यहाँ पे आपका ज्योतिर्लिंग भी है ना। तो अब हमको यहाँ से बेसिकली लूप में जाके, आप देख सकते हैं मैप में भी, लूप में जाके हमको फ्लाईओवर को कनेक्ट करना है। और इंजीनियरिंग मार्वल तो नहीं कहूँगा, बट ये भी कहूँगा कि हाँ, ये समृद्धि महामार्ग अपने आप में एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। और ना हम ज्वाइन कर रहे हैं सीधे, अगर हम गए तो नासिक, और लेफ़्ट गए जो हम ज्वाइन करने वाले हैं तो अब हम लेन ज्वाइन करेंगे टूवर्ड्स नागपुर। और प्लान वही है कि नागपुर से हम सिवनी तक जाएंगे, सिवनी में फिर हम रुकेंगे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ खास बात है कि जो टोल का सिस्टम ये है कि आपको यहाँ पे पैसे तुरंत नहीं कटेंगे। आई थिंक दैट वाज द थिंग आई वाज टोल्ड ऑल्सो। यहाँ पैसे तुरंत नहीं कटेंगे, आपका बस यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड होगा, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है सामने वाले का फॉर सम रीज़न। चलिए, क्या दिक्कत हो गया उनका फाइनली। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, और फिर जहां आप एग्जिट करेंगे, फिर वहां पे आपका फाइनल टोल डिडक्ट होगा। तो स्वागत है आपका समृद्धि महामार्ग में। देखिए वो समृद्धि महामार्ग है, अब हम इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। We are lucky to see this kind of progress in India. Thank you to the current government, to Mr. Gadkari ji for doing all the hard work, and thank you every taxpayer in India, who has paid their taxes and have contributed to the growth of India. Please everyone pay your taxes. It's a kind request. So there are 4 lanes. The lane I am driving right now is for speed of 80, and then now on the second lane it's a speed of 100, and the third one, that's for 120. So I'm trying to just match up with 120, and then I will put it on cruise control. ये तो बहुत अच्छा रोड है। ये बहुत ही अच्छा रोड है। तो हमने अब क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है एग्जैक्ट 120 की रफ्तार पर। और नेक्सॉन की खास बात यह है कि स्पीड पे वो आपको कंटिन्यूअस बीप साउंड देता रहता है, अलर्ट करते रहता है कि आप काफ़ी स्पीड पे हैं। बट ऑफ कोर्स हम इतनी स्पीड पे किसी रोड पे चलाते नहीं, बट यहाँ पे स्पीड लिमिट है तो हम चला रहे हैं। देखिए कितना अच्छा है। हालांकि ये जितना अच्छा दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आप इसको लाइट ले लेंगे, क्योंकि आप सीधी रोड पे जा रहे हैं तो आपको रोड डिजीनेस भी हो सकता है और आपको लगेगा कि आपको नींद आ रही है, झपकी लग सकती है, क्योंकि कुछ है नहीं करने के लिए। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास अटेंशन है, मेरे पास बोल रहा हूँ मैं तो मेरा ध्यान है, तो मेरा ध्यान बटा हुआ है, राइट। बटा हुआ है मतलब ड्राइविंग से नहीं, बट एटलीस्ट कि मैं खो नहीं गया हूँ किसी चीज़ पे। तो कुछ ना कुछ आप गाने सुनिए, बात करिए किसी से, और वैसे करके चलते जाइए इस रोड पे। एकदम आप शांत बैठ जाएंगे तो वो भी अपने आप में एक रिस्क हो सकता है ना। एंजॉय करिए इस जर्नी को हमारे साथ। देखिए, चलिए मिलते हैं और आगे। तो 1 से 20 की रफ्तार हमारी स्पीड लिमिट, एज यू कैन सी ऑन टॉप। हम 120 एग्जैक्ट पे चल रहे हैं, बट सामने वाली गाड़ी ने हमको जस्ट अभी ओवरटेक किया है, तो डेफिनेटली वो 120 के ऊपर ही चल रहा है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप स्पीड लिमिट के आगे जाएं। अभी शायद कैमरास यहाँ पे लगाए नहीं गए हैं जो आपकी स्पीड को मॉनिटर करें, बट
फिर भी कैमरे की क्या जरूरत है जब वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 120 के ऊपर ना जाएं तो ना जाएं। तो रोड खाली है तो लोग उड़ा रहे हैं। चलाने में आपको कैसा मजा आ रहा है? मज़ा तो आ रहा है क्योंकि हम चला ही नहीं रहे हैं। अच्छा, गाड़ी तो चल रही है क्योंकि रोड ऐसी है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। तो इसको तो मैं भी चला लूं अभी। हाँ चला सकते हैं, लेकिन ध्यान आपका पूरा होना चाहिए कि आपकी नींद, आपको झपकी ऐसी कोई चीज़ ना हो, ठीक है? क्योंकि जिस रफ्तार पे हम चल रहे हैं उस रफ्तार पे गलती के चांस बहुत कम है। अच्छा देखिए, यहाँ पे इन्होंने यू टर्न के भी प्रोविज़न दिए हैं। पहले नहीं था, ये बंद था। अभी आपने देखा कि यहाँ पे कटिंग है, तो जस्ट इन केस कि अगर किसी ने गलत एंट्री ले ली है तो वो सीधे नागपुर ना उतरे, कहीं बीच में उसके पास हाँ, अपॉर्चुनिटी ये रहे अच्छा कि है। वो वहाँ से एग्जिट कर सके। अब बात यही है कि 6 घंटा 34 मिनट दिखा रहा है अभी तक नागपुर के लिए, बट हमको ये रास्ता चलेगा कितना देर? ये रास्ता आराम से आपका नागपुर तक है पूरा ये। अच्छा, तो ये पूरे 6.5 घंटे जो इसमें शो हो रहे हैं, मान लीजिए नागपुर का ये सिटी का ले रहा होगा अभी, तो आप मान लीजिए कि नेक्स्ट 5 घंटे 45 मिनट तो कम से कम ये चलने वाला है। ये बहुत अच्छा है। लगभग 500 किलोमीटर शायद हमको ऐसे ही चलना है शायद। यहाँ पे लिखा है 5 किलोमीटर, देखिए 549 हो गया अभी, तो मतलब इतना दूर तक तुमको चलना ही है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है भाई, थकेगा नहीं इंसान। देखिए क्या मज़ेदार सीन है। शाम के 4:30 बज गए हैं, ठंडी का मौसम है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा धुंधलापन कुहासा टाइप का है, तो ज़्यादा रोशनी नहीं है, बट एनीवे गाड़ी तो अपनी चल रही है। और हमको पीछे से एक ओवरटेक करने आ रहा है जिसकी स्पीड डेफिनेटली 120 तो नहीं है, क्योंकि वो हम 120 पे चल रहे हैं और हमको वो लेन छोड़नी पड़ी क्योंकि ये बंदा बहुत देर से पीछे दिख रहा था। चलिए अब इसको जाने देते हैं। अच्छा, गाड़ी भी नई है और देखिए इसने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है भाई ने, और 120 से 140 की स्पीड में कम से कम वो गाड़ी चल रही है। अच्छी बात है, शायद वो गाड़ी की टेस्टिंग कर रहे होंगे बिफोर एक्चुअली डूइंग द रजिस्ट्रेशन। सब सही है कि नहीं? सोना, तो आपको कैसा लग रहा है इस हाईवे पे आके? अच्छा लग रहा है। क्या मजा आ रहा है? हाँ। अच्छा, क्या आप भी गाड़ी चला सकती हो अभी? हाँ। अच्छा, एक और चीज़, अभी तक हम लोग 196 किलोमीटर कर लिया, मतलब 4 किलोमीटर शेष है, रह गए हैं। और गाड़ी जो हमारी माइलेज दिखा रही है अभी 16.9 का दिखा रही है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा माइलेज है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं इस रोड पे शायद 80 की स्पीड में चलाऊँ तो ये माइलेज को थोड़ा और ऊपर खींचा जा सकता है, बट क्योंकि हमको थोड़ा होटल भी जल्दी पहुंचना है, रात को 2 बजे अभी टाइम शो कर रहा था, तो थोड़ा सा हमें जहाँ पे हम कवर कर सकते हैं वहाँ कवर करना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा, है ना? चलते हैं, देखते हैं कब पहुंचते हैं।
किलोमीटर शिरडी का भी एग्जिट है। एंड देन छत्रपति जी संभाजी नगर, नागपुर 544 किलोमीटर 544। शिवाजी संभाजी नगर आई थिंक औरंगाबाद को कहते हैं शायद। कोपरगांव एज यू कैन सी ऊपर बोर्ड में ट्रक आ गया, शायद ना दिखेगी, बट यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद कोपरगांव आपको मिल जाएगा। शिरडी जाना यहीं से एग्जिट मिल जाएगा ना कहीं से। देखते हैं, अगर हम लोग रिटर्न करेंगे जब कभी जाना तो हम शिरडी के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम समय से आ रहे हैं तो शिरडी में साईं जी के दर्शन करके साईं बाबा के फिर हम पुणे के लिए कैसे हो सकते हैं। यहाँ से है कट शिरडी जाने का, देखो डाउन पे। ये अच्छा है ये रास्ता ना शिरडी जाने बस का। थोड़ा सा ये है कि आप जैसे बाउंसी है। बाउंसी है, तो अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये क्या हिल रहा होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा। इसका रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स हम इसको हाथ में पकड़े, मोबाइल को या स्टिक में पकड़े या कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप रखे, क्योंकि आप कार में बैठे हैं तो जो रोड है ना वो एकदम स्मूथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी चल रही है तो आपको पता नहीं चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं, खड़खड़ खड़खड़ करके आवाज़ है, क्योंकि कंक्रीट रोड है, नंबर 1। नंबर 2, जो थोड़े थोड़े पैच वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं इसमें, तो वो ना एक लेवल में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके जंपिंग जैक होते रहता है, ट्रैम्पोलिन जैसा है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप जंपिंग कर रहे हैं। आई थिंक वो रीजन भी है ऐसा बनाने का ना। नहीं, वो रीज़न नहीं है। बोलो। गाइस, अगर आपको ट्रैम्पोलिन में जाना है, आपको पैर चला नहीं कर रहे तो इस रोड में आ जाना, ये तो खुद ही बाउंसी है। अरे वाह, ये भी एक अच्छा बच्चों के option लिए है। बोला आपने। हाँ? तो देखिए नागपुर 540 किलोमीटर, बैजापुर 30 किलोमीटर, छत्रपति संभाजी नगर 71 किलोमीटर 71 किलोमीटर। और यहाँ पे कुछ पैच वर्क अगेन चल रहा है, पैच वर्क ही चल रहा है। कंक्रीट रोड है, तो देखिए एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जब इस रोड पे आप आइए, कभी मान लीजिए ठंडी के मौसम में आते हैं तो ठीक है, जैसे अभी ठंड का मौसम है और मैंने गाड़ी में जो प्रेशर रखा है, टायर प्रेशर, वो 32 रखा था, तो अभी गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही है और अभी प्रेशर शो कर रहा है 33, 34, 35 ऐसा करके एक टायर पे। बट अगर आप गर्मी के मौसम में आते हैं तो इस तरीके के हाईवे में स्पेशली जो कंक्रीट का है, राइट, इसमें आप एयर प्रेशर ना थोड़ा 1-2 पॉइंट कम करके ही आइए, क्योंकि गर्मी की वजह से एयर क्या है बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड होती है। और अगर आप नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे हैं गर्मी के मौसम में, गाड़ी AC भी चल रहा है और आपको अंदर पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर टायर के साथ जो हो रहा है 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे, उसके अंदर जो हवा है वो हवा बाउंस हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो देयर आर चांसेस कि टायर फट भी सकता है। जब टायर फटते हैं तो एवरीबडी नोज कि इट कैन बिकम फेटल अगर आप हाई स्पीड में हैं तो। बट आई होप आपको इन्जॉयमेंट मिल रहा होगा। ज़रूर आइए जब भी आपको मौका मिले, नॉट नेसेसरली इसी हाईवे के लिए आइए, बट अगर आपको कभी शिरडी जाना हो पुणे से तो आप नॉर्मल रूट ना लेके ये रूट लीजिए टू एक्सपीरियंस इट, है ना। बाकी चलते रहते हैं, देखते हैं आगे। ये कौन सी गाड़ी दिख गई? दोस्तों हम अकेले नहीं हैं, दोनों मोबाइल हाथ पकड़ लो। दोस्तों हम अकेले नहीं हैं, ऐसा नहीं कि हम ही बस जा रहे हैं। आपको पोर्शे भी दिख रही है जो हमारे सामने चल रही है। अब हम पोर्शे को थोड़ा शूट करते हुए चल रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। पोर्शे वाला भी गाड़ी धीरे ही चला रहा है, हम भी धीरे चला रहे हैं। क्या वो भी माइलेज निकाल रहा है, ये भी हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी आराम से चल रहा है ताकि लोगों में वीडियो बनाए।
किया जा रहा है, पोर्शे की इज्जत खतरे में है। लेकिन पोर्शे वाले भाई साहब भी शायद खैर का गाड़ी का नंबर हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं। और ये तो रोड है, रोड पे दिखते रहता है। अब हम पोर्शे को ओवरटेक कर रहे हैं। इसी के साथ टाटा नेक्सॉन ने पोर्शे को हराया और पोर्शे हार चुकी है टाटा नेक्सॉन से। भाई पोर्शे तू हार गया, ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ट्रॉफी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ टाटा नेक्सॉन AMT विनर हो गई है। हालांकि इसके चक्कर में बहुत सारी गाड़ियां भी हमको ओवरटेक कर ली, ठीक है, पर हम तो उससे जीत ही नहीं रहे थे, कंपटीशन ही नहीं कर रहे थे। हमारा तो पोर्शे से था जो हम जीत चुके हैं। चलिए बढ़ते रहते हैं ना। रिवर का पुल हमने अभी क्रॉस किया। स्पीड लिमिट 120 की है मैक्सिमम ऑफ कोर्स। एंड आप ये भी मान लीजिए कि बोल तो नहीं रहे हैं कि मिनिमम, लेकिन जो लेन के हिसाब से 80, 100 और 120 जैसा मैंने आपको बताया, तो आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि मिनिमम स्पीड भी आपकी 80 होनी चाहिए। आप इतने बड़े हाईवे पे हैं तो आपको स्लो भी ड्राइव नहीं करना है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो स्लो ही करूँगा ड्राइव। ठीक है, स्लो करेंगे आप, ट्रैफिक नहीं है, इट्स ओके। बट जब ट्रैफिक रहता है इस तरह के हाईवे में, एक्सपेक्टेड है कि हाईवे को हाईवे की तरह यूज़ किया जाए, है ना। इस तरह का जो एक्सप्रेस वे होता है उसमें एक आपको मिनिमम स्पीड भी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड से तो एक्सीडेंट होता है, नो इश्यूज़। आप ज़्यादा स्पीड करेंगे तो, लेकिन आप कम भी करेंगे तो भी दिक्कत है, आपको पीछे वाला ठोक देगा, है ना। तो ना आप बिल्कुल ही ज़्यादा करिए ना बिल्कुल ही कम करिए। एक जो स्पीड लिमिट डिफाइंड है आप उस पर काम करिए। चलिए बताते हैं और आगे। गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर से, ओवर ब्रिज है। इस तरीके का एक और आएगा, 2 पहाड़ के बीच में रहेगा वो एनिमल क्रॉसिंग के लिए बनाया है उन लोगों ने। बट ये तो ऑफ कोर्स व्हीकल क्रॉसिंग के लिए, व्हीकल क्रॉसिंग के लिए, ह्यूमन बीइंग एनिमल के लिए बनाया है ये। Human being is not an animal. Yeah, it's animal. Yeah, but it's an animal. It's a monkey. Are you a monkey? No, you are a monkey. मंकी पापा, मंकी मम्मा एंड मंकी चाइल्ड। 7 घंटे 50 मिनट अभी बचे हैं, 600 किलोमीटर लेफ्ट। कब आए? 300 किलोमीटर के लिए सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर बचे हैं। सिंस पुणे वी लेफ्ट। 17.7 इज द माइलेज दैट कार इज शोइंग, एंड राइट नाउ इट्स शोइंग 307 किलोमीटर। I can go without refueling, but of course that we won't take risk. There are not many filling station or petrol bunks, so plan or fill your tank before you jump into the Mahasamudri Mahamarg. There are petrol stations, but it's just that they are less in number, right? So if you think like, oh, I have only 20 kilometers left, I need to find one, you might be lucky to find one, else not. Don't take risk. We are now nearing Dhule and Ajanta Ellora. As you can see, the exit number 17 is for Ajanta Ellora. अच्छा, तो यहाँ से जाएंगे तो अजंता एलोरा केव्स देख सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप देखें इधर ऊपर आपके बोर्ड आ रहा होगा, एग्जिट 17 एल्लोरा, राइट। और ये एग्जिट अगर आप वहाँ दूर पे देखेंगे वो शायद है आपका एग्जिट, जो आप जैसे अब यहाँ से एग्जिट करेंगे तो जो भी आपने जितना यूज़ किया उसके हिसाब से ही आपका टोल कटेगा। तो एंट्री के टाइम पे बस उन्होंने रिकॉर्ड किया था आपका फास्टैग नंबर, बट जब आप एग्जिट जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से आपका पैसा कटेगा। ये आ गया ना एग्जिट। ये एलोरा, ऑल्सो कॉल्ड औरंगाबाद, ऑल्सो कॉल्ड नाउ संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। We will continue from here. A long way to go. 600 kilometers. 7 hours 48 minutes to go. Not many eateries we have seen. Actually, since we started, I have not seen any eatery actually. On at least on this side, on the left side where we are driving. So there was a rest area I found, but that rest area was also like a truck levy, right? Where trucks are basically can park their vehicle if they want to rest. Other than that,
No, nothing yet. Let's see how it goes. तो ये हम लोग चले जा रहे हैं, रास्ते में एक अच्छा व्यू दिख रहा है हम लोगों को, एक पहाड़ है, पहाड़ का शेप भी बहुत शेप भी बहुत परफेक्ट है, ये काफी स्ट्रेच में फैला हुआ है, देखो एक वहाँ एक है, एकदम बराबर पहाड़ बना है, देखो दोनों साइड से कटिंग। हाँ डिफरेंट है थोड़ा सा, मतलब जैसे होता है वैसा नहीं है, उधर वाला कॉर्नर वाला, और बाकी यहाँ इधर भी है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या वो पहाड़ काट के रास्ता बनाए क्या बीच में, पहाड़ काट के रास्ता क्योंकि पूरा पहाड़ी है, तो लगता आगे ना वो रास्ता काट दिया होगा और रास्ता बनाया। चलिए हम वहाँ पे आपको गाड़ी थोड़ा सा रोक के उस जगह पे आपको दिखाएंगे, रोक के नहीं तो कम से कम स्लो करके हम वहाँ तक चलते हैं। काफी अच्छा दृश्य है, देखिए थोड़ा शाम हो गई है इसलिए धुंधलापन हो गया है, दिन के समय पे बहुत सुंदर दिखता है ये। चलिए दिखाते हैं आपको, कैसा लग रहा है आपको ये, सच सच बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, धुंधला है पर सुंदर व्यू है। अभी हम अपनी लोवेस्ट स्पीड इस हाईवे के हिसाब से 80 में चल रहे हैं, 80 पर जैसे जैसे पास जा रहे हैं धुंध कम दिख रहा है ना, दूर हाँ, से तो पता नहीं चल रहा था। हेजीनेस है, वो होता है ठंड के मौसम पे, ये फ्रॉस्ट भी है, पोल्यूशन भी है, धूल भी है, सब कुछ मिला हुआ है इसमें। पर ये देखिए आप, देखिए कैसे पहाड़ को कट करके ये कार्य किया गया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना समय लगा होगा। और अब हम लोग ऐसा ब्रिज देखने वाले हैं, सुना, जिसमें एनिमल चलता है। हाँ करेक्ट, वो ब्रिज बनाया ही इसलिए गया है ताकि एक साइड से एनिमल दूसरे साइड एनिमल क्रॉस करके जा सके और कोई भी उनको असुविधा ना हो, ठीक है, इसलिए ये बनाया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ने अपनी गाड़ी भी खड़ी की है फोटोज लेने के लिए। ये काफ़ी एक ऐसा जगह है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और इस तरफ से निकलते हुए गाड़ी जरूर रोकते हैं। देखिए देखिए कितना सुंदर है, कितना गजब पत्थर वाला पहाड़ था ये, बिल्कुल देख के ही लग रहा है कि एकदम स्ट्रॉन्ग पहाड़ था, स्ट्रॉन्ग पत्थर था, मिट्टी नहीं है ये, पत्थर है पूरा। भाई सही में लग रहा है काटा गया है। हाँ काटा ही गया है बेटा, पूरा ब्लास्टिंग करके उड़ाया गया होगा सोना बेटा। और देखिए सोना, वो आप जो देख रहे हैं ना, हाँ, वो ये सामने ब्रिज। आपको ब्रिज दिख रहा है, वो ब्रिज क्या है, वो इंसानों के लिए नहीं है, एनिमल्स के लिए। वो एनिमल्स के लिए है। इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर आप पहाड़ काट रहे हो तो आप उनका रास्ता भी काट रहे हो, तो अब बच्चे कहाँ से जाएंगे उनके, पहाड़ बंदर कैसे जाएगा इधर से, हैं जानवर कैसे जाएगा इधर से, तो उन लोगों ने वहाँ से ऊपर रास्ता बनाया है कि एक देखिएगा क्या? नहीं नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, वो वहाँ से इस रोड से अपना क्रॉस करके वो निकल जाएंगे, कवर्ड है ना वो? ठीक है, वो कवर्ड है ताकि थोड़ा नॉइस कैंसलेशन के लिए भी रहेगा उनके लिए, कि उनको आवाज़ ना जाए गाड़ियों की, ठीक है। बाकी ये कहानी है, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बोलो आप, सुना कविता जरा एक्सप्लेन करेंगे आप। हाँ एक और वैसा ही ब्रिज है जैसा अभी हमने देखा है, इसको भी पहाड़ काट के बनाया गया है, और आप देख सकते हैं इधर भी काफ़ी रेंज तक पहाड़ है, और ये भी एक क्रॉस करने के लिए बनाया गया पुल है लग रहा है, जो अभी हम क्रॉस किए। आगे भी वैसा नज़ारा आते हुए दिख रहा है हमें। बहुत आगे का पहाड़ आप अगर देखें, पता नहीं कहते कैमरा में कैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ा धुंध है, हेजीनेस है, बट सामने बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आई थिंक पूरा ये रास्ता ही वैसे ही बनाया गया लग रहा है, पहाड़ थे उनको काट काट करके बीच से ना। या जगह का नाम शो कर रहा है भीखापुर बट anyway, सामने अगर देखें तो एग्जिट यहाँ पे है अजंता का, अच्छा वो अजंता छत्रपति, हाँ तो ये एक्चुअली वो भी यहाँ होगा एग्जिट, और यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो मल्टीपल एग्जिट्स आर अवेलेबल, जैसे कि आप अगर आपने वो एग्जिट मिस कर दिया किसी कारण से, तो और भी एग्जिट्स हैं जहाँ से निकला जा सकता है। इधर भी देखो पूरे चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है, लेफ्ट में राइट में, और बीच से हम जा रहे हैं। धुंधला नहीं होता तो अच्छा सनसेट भी दिख जाता। करेक्ट,
सनसेट हम थोड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि सनसेट के लिए एकदम बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट, आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा सीन बनता। चलिए हमने ओवरटेकिंग जोन को तो छोड़ दिया, लेकिन ये भाई साहब लोग कम स्पीड में मिडिल लेन पे चला रहा है, तो मुझे अब इनको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा साइड से। बट एनीवे देखिए दूसरा पहाड़ है, तीसरा है ये, हाँ। तीसरा है इस हाईवे का, जहाँ पे क्लियरली पहाड़ को सीधे एकदम कट कर दिया गया है। देखिए जलगांव के लिए कट है आगे से एग्जिट 18 नंबर 16 नंबर माफ करिए 16 नंबर आप एग्जिट लीजिए और आप पहुँच जाएंगे जलगांव। बोर्ड में लिखा है नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, इसीलिए हम यहाँ पे रोक नहीं रहे हैं फोटो वोटो खींचने के लिए। हमने हमें जो चाहिए था हमने कैप्चर किया है। आगे और आ रहा है ऐसा ही, देखो ऐसे बहुत सारे पहाड़ आ रहे हैं, रेंज है पूरा। ये अरावली रेंज में आता है ना, जो ये पूरा पहाड़ का एरिया है। इस पहाड़ को बनने में कितना समय लगा होगा, उससे कम समय में काटने में लगा है फॉर श्योर। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अभी तक हमने देखा कि पहाड़ काट के ऊपर से ब्रिज बनाया हुआ था, सुरंग बनवाई। अब आ गई बारी सुरंग की। तो हमारे पास टनल भी है, बड़ी टनल नहीं है लेकिन देखिए कितनी सुंदर है। सुरंग बहुत सुंदर लगती है। देखिए वाह 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 वाह। तो इसमें शायद इन्होंने कैलकुलेट किया होगा, इनको लगा होगा कि कट करने में शायद जो कॉस्ट आएगी उससे कम कॉस्ट पे इसको ड्रिल किया जा सकता है, क्योंकि अगर कट कर दे तो ब्रिज बनाना पड़ता। तो देखिए जब आप इंजीनियरिंग लाइन पे होते हैं तो आपको कॉस्ट की जगह पे और कॉस्ट वर्सेस एफर्ट वर्सेस और उसका यूसेज, ये सारी चीज़ एनालिसिस करनी पड़ती है। इस केस में कॉस्ट वुड हैव बीन अ फैक्टर, so without disturbing much the natural landscape they did the drilling. Okay, let's continue. This is the view of night of Samriddhi Mahamarg, of course, and most of the places these lights are not there, so only when we are about to reach Jalna, so there is a Jalna exit now, these lights are there on the highway. I don't know what is the plan, is they are ever going to make the whole Mahamarg illuminated with lights? क्या लाइट लगाएंगे वो कि नहीं लगाएंगे पता नहीं, लाइट लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि लगाना चाहिए कि लगाना चाहिए। बट लाइट्स जो है अभी सिर्फ यहाँ पे है। अभी तक हम जहाँ से चले हैं जैसे ही अंधेरा हुआ हमने नोटिस किया कि एक्चुअली में बहुत अंधेरा था पूरे हाईवे पे, ठीक है। और रात के समय पे अभी मान लीजिए खाने को भी कुछ नहीं है, और अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है किसी कारण से, राइट, तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे जो हेल्प आएगी आपका जो SOS होता है या फिर जो रोड साइड असिस्टेंस होता है वो कैसे आएगी, क्योंकि रोड साइड असिस्टेंस वालों को भी तो इस एक्सप्रेस वे में कहीं ना कहीं से एंट्री लेके ही आना पड़ेगा, करेक्ट। तो आई डोंट नो कि अगर किसी ने ऐसा कभी झेला है कि नहीं, बट दिन के टाइम पे ट्रैवल करना इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड एटलीस्ट इन दिस हाईवे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है खाने पीने से लेकर, या फिर मुझे ऐसा भी कुछ नहीं दिखा कि साइड में कोई रिपेयर शॉप हो या पंक्चर शॉप हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो ओनली ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप SOS करिए या फिर अपना जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, आपकी गाड़ी अगर वारंटी पे है या आपने रोड साइड असिस्टेंस लिया है तो आप उसको कॉल करिए, है ना। तो समझ के आइएगा रात के समय, बाकी सेफ्टी वाइज तो कुछ नहीं है, आप गाड़ी कहीं रोकने वाले हो नहीं बीच में, ठीक है। आपकी गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी चलने दीजिए, अगर कोई आपको रोक रहा है तो आप मत रुकिए, है ना। ऐसे ही कर सकते हैं
सप्लाईज हियर, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग लेस। मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी का कोई इशू है। द ओनली इशू इज़ कि अगर आप कहीं स्टक हो गए तो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है ना, तो जैसे वॉशरूम के लिए भी मतलब कुछ है नहीं। पेट्रोल पंप भी जो हमें दिख रहा है बहुत दूर पे दिख रहा है। हाँ, पेट्रोल पंप अभी इस रूट में हमको अभी देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है कि अगर आपको पेट्रोल पंप लेना है तो अभी आ गया हमारे लिए एक सर्विस एरिया। 2 किलोमीटर बाद यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है कि आपको पेट्रोल मिलेगा, फूड के लिए कुछ ऑप्शंस हैं 2 किलोमीटर में। तो इस तरह के ऑप्शंस है, लेकिन ये ऑप्शंस क्या है, काफ़ी दूर दूर पे हैं। मतलब कि अगर आया एक कोई ऑप्शन आया तो नेक्स्ट फिर आपको 80-90 किलोमीटर में शायद आए। हो सकता है आगे और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, बना रहे हों, बट अभी का तो सिचुएशन यही है। चलिए मिलते हैं आगे। सो नॉट मेनी पेट्रोल स्टेशन, बट वन ऑफ देम इज़ दिस वन, HP one, quite a nice one. You don't need to get out of the Mahamarg. It's right on the Mahamarg. Ample parking. Most importantly, there is a washroom, clean and neat washroom, and a tea center. Construction is still ongoing. So finally, we are at the exit point of Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray Samriti Mahamarg. This is the exit point, I guess. Yes, I think it is. So finally, after 755 kilometer from our source location, we are exiting this. We still have our hotel 162 kilometer away from here. So yes, it will take some time to reach our hotel. It's showing 1:26 AM in Siuni. But what we will do, this is our place where we will end the video for Pune to Nagpur, and then we will take the next step of Siuni in a separate one. Alright, have a nice day ahead.